Hello friends and my dear student. Today we will learn English subject chapter number 3.5 The Red-Headed League. आज हम अंग्रेजी के 3.5 चैप्टर द रेड-हेडेड लीग के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहले पेज नंबर 79 पे जो प्रश्न दिए गए हैं, वाई वाज फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपुल। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, पेज नंबर 79। वाई वाज फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपुल। इसका आंसर, एज पर द एडवर्टीजमेंट रेड हेडेड पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, सो फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपुल। सेकेंड, हु वाज वेल suited for the job? Mr. Wilson was well suited for the job. Third one, why did Mr. Wilson accept the job? Answer, Mr. Wilson accept the job because the pay was very good and the work was light. Fourth one, would you like to do such a job? Why? No, I don't like to do such a job because it has no creativity. अब आते हैं पेज नंबर 82 पे। कुछ प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 82 पे। टिल द नेम ऑफ यहाँ पे भी 1, 2 and 3 प्रश्न दिए गए हैं। टिल द नेम ऑफ यंग मैन हु ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स। आंसर, विंसेंट स्पॉल्डिंग ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स। रियल नेम ऑफ विंसेंट was Mr. Clay. Second one, why did Holmes want to see? Holmes wanted to see what of his trouser. Guess where Mr. Merriweather took the other answer to the cellar. पेज नंबर 83 पे प्रश्न दिए गए हैं। How did Merriweather come to know about the crime? उसका उत्तर इस प्रकार है, Mr. Sherlock Holmes told Mr. Merriweather about the crime. And next question, why did Mr. Holmes think the criminal would eat that night? Answer, that night was Friday night. The offices and bank will be closed on the weekend, so Mr. Holmes thinks the criminal would eat that night. And page number 84, how did the criminals enter the cellar? The criminals entered the cellar using the tunnel. Who were 2 criminals? Answer, Spaulding, the criminals Clay, and red-headed Mr. Duncan Ross were 2 criminals. Third question, who tried to get away? Do you think he was able to escape? Why? Answer इस प्रकार, Mr. Duncan Ross tried to get away. No, he was not able to escape because there are 3 men waiting for him at the other end. Guess the meaning of tunnel. इसका आंसर है, guess the meaning of tunnel। इसका आंसर है, a passage under the ground। एक ऐसी जगह जो जमीन के अंदर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनाई जाए। And next question, explain the trick of the red-headed league. How was it related, Mr. Wilson? Here, red-headed league gave an advertisement in the newspaper. They want a red-headed man for vacancy. Mr. Wilson had red-headed the wanted to give peculiar job to Mr. Wilson's peculiar job was to get Mr. Wilson's away from his shop for some hours every day. पेज नंबर 85 पे कुछ प्रश्न हैं। Why did Holmes become suspicious? Answer, Holmes became suspicious because the assistant worked for half the wages. So how did Holmes find out that the assistant was a criminal? Answer, using Mr. Wilson's description of his assistant, he made inquiries. He found that assistant was the criminal Clay. How did Holmes guess he was digging a tunnel? Answer, when Clay assistant answered the bell, the knee of his trousers
were wrinkled and strained. It confirmed Holmes guess that he was digging a tunnel. इसको इस प्रकार से उसका जो पैजामा था, ट्राउज़र था, वो मुड़ा हुआ था और थोड़ा गंदा था, तो इसको उसको अंदाज़ा लगा कि यही है। आते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। पुट द फॉलोइंग इवेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे ये जो इवेंट से जो घटनाएं हुई उसके क्रम में, उनको क्रम से लिखना है। पहले कौन सा क्रम आया, तो यहाँ पे ये पहला है, पहले इसको लिखना है आपको आंसर में, पहले इसको लिखना है जिसको हमने यहाँ पहला नंबर दिया हुआ है, उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद थर्ड वन क्रिएटिंग अ टनल, फोर्थ Holmes and others go to the bank, and 5 the bank received a lot of gold from the Bank of France, and 6 one is Clay and Ross enter the cellar to steal the gold, 7 Holmes catches the criminal Clay। ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टोरी इन विथ ly, फाइंड द एडजेक्टिव इन ईच ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब frankly, frank, silently, silent, carefully, careful, finally, final, quickly, quick। तो इस प्रकार से ये इसका एडवर्ब होगा और ये इसका एडजेक्टिव से ये एडवर्ब बनाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पर बाइसिकल मैनुअल दिए गए हैं। रूटीनली चेक द कंडीशन ऑफ द बाइसिकल बिफोर एवरी राइड, नट बोल्ट, screw and other fastener। Familiarize yourself with the braking action of the bicycle, test the brake and slow speed, always wear footwear, that is ये राइडिंग सेफ्टी, राइडिंग के लिए कौन सी सेफ्टी है यहाँ दी गई है। एंड टू फिल इन एयर इनटू बाइसिकल टायर प्रोसीजर स्टेप, कैसे उसमें टायर में हवा भरना है उसका ये प्रोसीजर दिया गया है। सर्विसिंग आ मेंटेनेंस मंथली, क्लीन बाइसिकल, फ्रेम विद अ क्लॉथ, चेक टायर प्रेशर, वाइप द चेन एंड ट्यूब, लुब्रिकेट, ब्रेक एंड चेन, हाउ टू मेंड अ पंक्चर, पंक्चर को कैसे बनाना है, गेट द ट्यूब आउट ऑफ द टायर, पंप एयर इनटू द ट्यूब विद एयर पंप, डीप ऑफ द पेयर इज। ये जो इस तरह से यहाँ पर सब 10 स्टेप्स दिए गए हैं पंक्चर को ठीक करने के। आगे देखते हैं। रीड द वर्ड पिक्चर ऑफ द बाइसिकल केयरफुल, इस बाइसिकल के जो पार्ट्स दिए गए हैं वो उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है और उसका लिस्ट बनाना है, उसका उस पार्ट्स का लिस्ट बनाना है। अभी देखिए हम यहाँ से पार्ट्स का लिस्ट देखते हैं अगर, तो इसमें सैडल, सीट पोस्ट, टॉप ट्यूब, सीट ट्यूब, डाउन ट्यूब, हेड ट्यूब, स्टेम हैंडल बार्स, ब्रेक लीवर, शिफ्टर, सीट स्टे और रैक, टायर रिम, टायर, स्पोक, चेन, वाल्व, डिरेलर, कैसेट, फॉर्क, हब एंड पेडल। यहाँ पे ये सब लिस्ट दिया हुआ, लिस्ट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस वर्ड इन द प्रॉपर कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल, यू मे ऐड अदर साइकिल पार्ट देन दोज shown in the diagram। Which of these words are used in mother tongue without any changes? Brake, spoke, chain and seat। Which word are used in your mother tongue with a few changes? Tire, tire, valve, valve, pedal, pedal, handle। Which word have an equivalent parallel word in your mother tongue? Saddle, top tube। Write other cycle or bicycle related word that you see: carriage, grips, suspension, disc, brake, roller। Find the compound word used in the diagram। compound word means ये compound word हैं जैसे seat post, top tube, sheet tube, down tube, head tube, stem handle bar, brake lever, seat stay, टायर रिम, ये कंपाउंड वर्ड हैं। तो इसके उत्तर में यहाँ पे इसके उत्तर में उस तरह से जो कंपाउंड वर्ड है उनको लिखेंगे। ट्रांसलेट एनी वन पार्ट ऑफ द बाइसिकल यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल देखिए यहाँ पे दिया गया है, उसको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके लिखना है। रूटीनली चेक, मैंने उसको नियमित चेक करते रहो तो उसके नट बोल्ट कैसे हैं, और इस जो है ये सारी चीज़ें हिंदी में करके लिखनी है, हिंदी में। कलेक्ट स्पेसिमन ऑफ मैनुअल एंड एग्जिबिट देम द क्लासरूम। इसी तरह से किसी दूसरी वस्तु का, जैसे तुम्हारे घर में मिक्सर होगा या कुकर है, वो किस तरह से कुकर का
उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, उसका कलेक्शन। कोई भी तुम्हारे घर में जो चीज़ का यूज होता हो, इस तरह की जो कोई भी छोटी सी मशीन हो, उसके जो पार्ट होंगे उसके पार्ट्स का नाम और उसका क्या काम है। ट्राई टू ड्रा सिमिलर वर्ड पिक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस। उसका एक पिक्चर बनाओ, जो भी तुम्हारे घर में कोई छोटी मशीन, जैसे मिक्सर भी हो सकता है और कुकर भी हो सकता है, या इसके अलावा भी दूसरे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक डायग्राम बनाओ और उसको उसके पार्ट्स का नाम लिखो। तो इस प्रकार से हमारा ये इस पाठ का ये स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।